Lotus Jungle. You have all written prelims and are now waiting for the result. So, what do you do now? There are two ways to go from here. First is just sit back and speculate on the cutoff to see how you performed, analyze the questions. Or the second way is to start preparing for your mains right away. But then, how do you do that? Where do you start? How do you cover those dynamic portions which you did not prepare during the prelims exam? And what about current affairs? How do you go about them? Vision IAS, through its years of expertise in general studies preparation, has brought together a comprehensive program, General Studies Advanced Mains. It is going to be a 60-day program where we will cover topics from GS 1, 2, 3 and 4. The details of the topics are available in the brochure, which you can find in our description box. Along with that, we will be covering Mains 365, in which we will be covering current affairs of the whole year from the perspective specifically suited for the mains examination. Mentoring program will be included in this, in which you can take personal guidance sessions on answer writing or any challenges which you are facing in the preparation. Study material will be available to you for the static portion and for the current affairs portion. For those of you who do not wish to relocate to Delhi at this time, we also bring all these services to you through an online mode. Along with the classes, we also assign a test series to you so that you can evaluate whatever preparation you are doing. So what are you waiting for? It's just 3 months before the exam. Get up, visit our website www.visionias.in. Our contact details are also available in the description box and on the screen in front of you. And join this course today. All the best.
welcome everyone. Today we have with us Neha Bandhu. She comes from Agra, Uttar Pradesh, and I read in a interview I was reading about her. So in that interview, it was mentioned that she comes from exactly the name of the place is Nainana Jat or Nainana Jat, the way you pronounce it. Right. A brief background about Neha before I welcome her to the floor. Her option was sociology, and earlier she had been part of Indian Railway Personnel Service. A very good thing which I really liked about Neha is that her initial schooling was in Hindi medium, and later on she adapted to the English language, and then she cleared the exam. In 2017 she cleared in the first attempt, and now she has become All India rank 121, and she'll be joining the Indian Administrative Services. So welcome Neha. I know I have already given your brief introduction, but still please introduce yourself to the audience. Good evening, everyone who are listening to this. I am Neha Bandhu. I have secured All India rank 121 this year. I am already undergoing, as sir said, Indian Railway Personnel Service nowadays, and I come from a rural background. I have done my schooling till 12th from a very small town, Kheragarh, that is in Agra, and after that I have done my BTech, MTech from IIT BHU, Varanasi in electrical engineering. In my family, I have my mother, who is principal in Government Inter College, Bijamai in Agra. My father is bank manager. My elder sister is also in services. She is posted in Etawah in Uttar Pradesh. She has been my inspiration throughout the journey. And my younger brother is Amit Bandhu, who has pursued LLM from NLS Bangalore. So this is all about me. Over to you, sir. ओके तो मुझे एक जो आपके इसमें एक जो चीज़ लगी जिसमें शायद से मैं कहूँगा कि आप क्योंकि कहीं ना कहीं लकी हैं कि आपको शायद से एक मार्गदर्शन मिला होगा अपनी सिस्टर से। पहले अपनी सिस्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या वो भी आईएएस हैं या फिर वो स्टेट सर्विसेज के थ्रू वहाँ पे है एसडीएम इटावा में? जी 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 My elder sister qualified both UPPSC and UPSC, but in UPSC she got Indian Postal Service that year, and then she chose UPPSC over it because she wanted to be in administration. So she has been the guiding light in my whole struggle. After first attempt, I got IRPS. In second attempt, I couldn't clear the mains, and that was I'll say the milestone of my preparation, where I came to know about my strength and weaknesses. I came to know about so this whole exam is just a process, and that needed to be taken as a process only. I will say yes, I am lucky that way. My sister's struggle would have been more. It was struggling for her, but I think yes, I am lucky that way. तो मतलब हम ये समझें कि जो आपने स्ट्रगल अपनी सिस्टर का देखा एंड जो पैशन शायद से आपने अपनी सिस्टर का देखा होगा, क्योंकि ग्रुप ए ग्रुप बी मैटर नहीं करता है। पॉइंट ये है कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, और अगर उस एरिया में आपका पैशन है तो कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिली। जो डेली लाइफ चैलेंजेस आपकी सिस्टर आपसे डिस्कस करती होंगी या फिर आपको, तो एग्जैक्टली मतलब उन्होंने आपका मार्गदर्शन किस तरीके से किया? क्योंकि मतलब देखो, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ और मेरा सिंपल मकसद यहाँ पे नेहा ये है कि भाई मेरी तो कोई बड़ी बहन कोई बड़ा भाई एसडीएम नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि नेहा मुझे वो बताएं कि despite not having a elder brother or sister as you know in a administrative position, तो वो ज्ञान मेरे को आपके थ्रू मिल जाए बिना उस भाई बहन के। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवन दो तो मैं कहूँगी कि लकी थी मैं उस सेंस में कि मेरी बड़ी बहन थी, उसने मुझे गाइड किया। पर जो ये एग्ज़ाम का जो सपना था,
आई वुड से ये मेरा अपना था, जो चाइल्डहुड से मैंने आईएएस बनने की सोची थी। तो अ, जो जो लोग ये देख रहे हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है या फिर बड़ी बहन एसडीएम नहीं है, और ये तो जितना भी जो मैंने मैंने मेरी स्ट्रेंथ अलग हैं, मेरी बहन की स्ट्रेंथ अलग थी, उसकी स्ट्रैटेजी अलग, उसकी स्ट्रैटेजी इन द सेंस उसके लिए काम करी, मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी। तो उसने मुझे लीवे दिया था पूरा, उसने मुझे जानने दिया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी बहन की ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरी बहुत वीक थी। तो मैंने ये नहीं देखा कि मैंने देखा कि ज्योग्राफी का बहुत पोर्शन आता है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, तो मैंने ज्योग्राफी के अपने नोट्स बनाए। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट copying the strategy of some topper or your sister or your brother or anything. It boils down to your individual strength and weaknesses. और मैं कहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि मैंने हिंदी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, और डेफिनेटली जो मेरे लिए मॉरल बूस्टर था वो ये था कि किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट कहीं पे भी आके किसी भी बड़े परीक्षा को पास कर सकते हैं, ये मेरा मोटिवेशन था। उससे जो मुझे मुझे मोरल बूस्ट मिला। और जैसे मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, और पर आपका जो इसका मीडियम होता है सिविल सर्विसेज का, वो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, पर बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका सब इंग्लिश में हो जाता है। कॉलेज में तो आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में तो कुछ होता नहीं है अभी। तो दैट मेरे स्ट्रगल अलग थे, मुझे अपने पे मेहनत अलग तरीके से करनी पड़ी। तो एवरी एस्पिरेंट हु इज़ लिसनिंग दिस, अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी को कॉपी करके अगर आप बन जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप बन सकते हैं उस तरह से, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पे ये एग्ज़ाम आप 121 या फिर इवन आप टॉप कर सकते हो, और किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस से नहीं काम चलेगा। जी, मतलब कि वन शुड बी एबल टू नो वंस ओन एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ वीकनेसेस। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई वांट टू लाइक ज़ीरो इन ऑन वन फैक्टर। मतलब आपने ये कहा कि आपका जो सपना था आईएएस बनने का, वो आपका खुद का था। तो ये सपना, मतलब व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दिस ड्रीम? डिड यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर from your childhood? Were there some experiences of your schooling times or some experiences with your parents, or your parents motivated the dream? या फिर आपने अपनी बहन को देखा और उसके बाद आप बनना चाहे? तो मतलब what was the motivation for becoming an IAS officer, for pursuing this journey? तो जो मेरा जो जैसे कि मैंने मेरा पूरा जो स्कूलिंग है रूरल बैकग्राउंड में हुई है, एंड आई हैव सीन द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडियन विलेजेस, where there is so much potential in people, women, and especially the underprivileged section. And I feel I was privileged in the sense my parents always motivated me to fulfill my own dreams. I know if I say my parents that I have to become this, my parents would have supported me. But this is not the case with every Indian girl, especially, and a rural background person, boy or girl. Reason being, the education is still not the priority. First, secondly, there is inferiority complex in the rural students, especially I would say, because I have seen this, they are equally capable of clearing any examination or competition, but when they see the English speaking people, they feel that they are not smart, they are not intelligent. But what I have felt, I am I am from UP board also. So when I went to my college and I saw the CBSE ICSE people, I was myself discouraged to know, they have so much exposure, they have so much facility, and they know a lot about every competition here and there. So in rural student, there are lack of opportunities are there on the ground. And somewhere when I was a
I was very small, like sixth, seventh, eighth. I was feeling that uh, why so? Whenever I used to go to a competition outside, I was kabaddi player in school. Eighth class state level kabaddi player. Then whenever I went outside, so I used to see the level of competition. And then in 10th class I cleared NTSC examination. It is also a national level examination. It like pre, mains and interview, three stages are there. So when I जी saw the competition, I went to this NCRT center. वहाँ पे पूरा दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हुए थे, and they were huge in crowd. They all were discussing everything, having group discussion and everything, and this was so entirely new for me. So I thought, oh, this there is so much competition. I was topping in my school, and this is nothing. Like, this is a frog in a well. You are nothing. So then I didn't get demotivated that time. Even I got motivated to work harder, to fulfill my dream. There is one thing, having a dream, and there is another thing, that you can go on any level to fulfill that dream or not. So the motivation for me was more internal that way, because I wanted to prove uh, that even from humble background, having Hindi medium, not so from reputed college, BTech मैंने BIT झांसी से किया है, वो UPTU का कॉलेज है. सो आई वॉन्टेड टू ब्रेक ऑल दीज स्टीरियोटाइप कि ऐसा नहीं होता कि जैसे बड़े कॉलेज के DU के या IIT के बच्चे ही बन रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं. सो दिस एग्ज़ाम इज़ अ इक्वलाइज़र. ये हर उस बच्चे को मौका देता है जो मेहनत करता है और जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी सोसाइटी में. जस्ट बिकॉज आई हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन आइज. जैसे कि लबासना में भी विलेज विजिट होता है. मेरी पूरी स्कूलिंग ही विलेज विजिट थी. सो इट वॉज सो आई वॉज वेरी इंटरनली मोटिवेटेड कि मुझे अपने तरफ से कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में. क्योंकि मुझे लग रहा है कि अरे ये तो गलत है. तो जैसे लड़कियों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, और मतलब डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरह के होते हैं. लड़कों को भेज दिया और लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं बीच में फॉर सम रीजंस. और कॉलेजेस बहुत कम है. जैसे मैं खिरागढ़ में, इवन नाउ देयर इज़ नो डिग्री कॉलेज. सो दिस वॉज माई मोटिवेशन कि एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन, ये सबको होनी चाहिए. दीज आर द बेसिक necessities of life, or this should be provided to each and every person. So this is how I used to think in my school life. So this motivation kept me going even after getting IRPS. I thought, no, I want to contribute directly. So I worked harder in my next attempts. हालांकि मैं आपसे एक बात पे थोड़ा सा मतलब डिसएग्री करना चाहूँगा. मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलने से कोई ज़्यादा तुर्रम खान बन जाता है. ठीक है, मतलब एक बेकार बात अंग्रेज़ी में आप कर दो तो शायद से मतलब लोग मतलब ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है. और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, ये perception है. आपने इस जी 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 जी. तो मतलब हाँ, जैसे आप कह रहे हो ये परसेप्शन है. और मतलब जैसे एक शायद से शहर में रहने वाले स्टूडेंट को मुझे नहीं लगता उसे ज़मीनी हकीकत पता है. मुझे नहीं लगता उसे पता है कि खेत कैसे दिखते हैं. मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि जो नेचर के साथ जो एक रहना होता है, जो हम बैलेंस विद नेचर जो अपनी विलेजेस में देखते हैं, जो सोसाइटी जो जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रहती है. तो मुझे लगता है कि आपके थ्रू एक ये मैसेज जाना चाहिए कि रियलिटी के ज़्यादा पास और एक्सपोजर ज़्यादा असलियत में गांव वाले लोगों का है, बजाय के शहर वाले लोगों का, जो कि शायद से ICT की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से या शायद से कुछ हॉलीवुड मूवीज़ या फिर कुछ और, ये इस चीज़ को एक एक्सपोजर का नाम दे दिया गया है. क्योंकि जब आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हो तो डेफिनेटली जो एक व्यक्ति विलेज से आया हुआ है, गांव से आया हुआ है, उसको सीखने के लिए कम है. वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीखा हुआ है. और जबकि वो जो
शहर वाले जो सपोजिटली ज़्यादा जो है व्यक्ति हैं जो सिलेक्टेड हैं उनको ज़्यादा सीखना है, वो ज़मीनी हकीकत उनको बनानी है, इसीलिए कहीं ना कहीं लबासना में विलेज विजिट होती है। और मैं इसलिए आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने जो है अपने सपनों को जो है पूरी तीव्रता दी और आपने यू हैव वर्कड हार्ड ऑन योर ड्रीम्स एंड यू हैव बीन एबल टू अचीव इट। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश, हिंदी और ये सब कुछ नहीं है, अब आप मेहनत करें तो आप उसमें डेफिनेटली सक्सीड कर सकते हैं। तो मैं इनफैक्ट मैं खुद आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया और मुझे आपकी मोटिवेशन का जो रीज़न है वो एकदम से मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा एक आपका सक्सेस उदाहरण जो है एक रहेगा। तो आगे बढ़ते हुए अगर फिर बात करें तो इसमें बात आ जाती है कि सबसे पहला जब एक स्टूडेंट इस प्रिपरेशन में एंटर करता है तो उसके सामने 2-3 बड़े बड़े डाउट्स होते हैं। पहला डाउट तो उसका ये होता है कि मैं ऑप्शनल क्या ही चूज़ करूं, और दूसरा डाउट ये होता है जो शायद से लोग विलेज बैकग्राउंड से हों कि अच्छा क्या मैं हिंदी मीडियम में जाऊं या इंग्लिश मीडियम में जाऊं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ा सा घेरना चाहूँगा, ठीक है, और मैं ये घेरना चाहूँगा कि यू सेड कि यू शिफ्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इन योर इंजीनियरिंग everything was in English. But the point is the option that you chose, sociology, that could have been done in Hindi. So therefore, मतलब जो हमारे विलेज से जो लोग हैं उनके सामने आ सकता है कि चलो अगर मैं इंजीनियरिंग का विषय चूज करता हूं तो चलो मुझे इंग्लिश में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट अगर सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है तो क्या उसे हिंदी में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता? क्या हिंदी भाषी लोगों के लिए सोशियोलॉजी को हिंदी में प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं? क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से आपने शिफ्ट किया फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? एक तो ये चीज़, क्या सही में बहुत डिफिकल्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए? क्या हर हिंदी मीडियम वाले को सोचना चाहिए कि मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर लूँ? तो एक तो ये चीज़, और दूसरा फिर आपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी किस पद्धति पे चूज किया, मतलब व्हाट वर द रीजंस दैट यू चोज सोशियोलॉजी? तो जो मेरा रीज़न था सोशलॉजी चूज़ करने का वो ये था कि मेरा जो इंक्लिनेशन ह्यूमैनिटीज़ के लिए कॉलेज टाइम से ही था। कॉलेज टाइम में हर सेमेस्टर में एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथिक्स, ह्यूमन राइट्स, जी। और हमारे कॉलेज में ऐसा होता था। तो ये सब्जेक्ट्स मुझे लगते थे कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इट्स वेरी रिलेटेबल in the day to day life. So जी। choosing sociology also because I have like very keen interest in understanding Indian society because of the intricacy of Indian society. For example, the institution of family you find here in India, and this kind of institution you will not find in any other country the way it is in India. So these all things were very interesting for me. So I chose sociology over my technical subject on the basis of mainly interest. And then I felt I saw the syllabus of sociology, I saw the previous year paper questions. So I found, oh, this is appearing exciting for me. I want to solve these questions. So this kind of interest led me to choose sociology. It was not it was much thought decision that time because I analyzed other optional as well, be it polity, psychology, or my own electrical engineering also. So and second thing, what you asked about switching from Hindi medium to English medium. So जी। what I feel, it's not important the medium, Hindi medium or English medium. I switched because I thought that I can express myself in English better, in the sense that I was not able to write fluently that well in Hindi. It may sound because I worked hard so much in my engineering time. All the presentations were in English, all the project we used to got, we have to explain that in English.
So I really worked hard on my English by reading English newspaper, English novels, and I was very bad in English when I entered into my college. There was one competition, it was about group discussion, and I kept mum throughout the group discussion. Even I topped in the written examination, but then I found out my weakness. It is so I thought I that time I thought it's my weakness, but now I think it was the need of the time. So the one thing I want to say about the Hindi medium and English, it's not about the fighting over the medium. It's about which medium helps you to express better. Hindi medium, हमारे निशान सर हैं, he qualified from Hindi medium. I think he got some 90 in 90s, some rank he got. And there are many my own friend cleared from Hindi medium only. He also belong from rural background, and my तो Hindi is सोशियोलॉजी से ही very- किया उन्होंने? जी आपके जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से किया, तो इनके सब्जेक्ट्स क्या थे? सोशियोलॉजी ही जी था आपकी उनकी तरह? ज्योग्राफी अच्छा अच्छा। जी। तो तो एक्चुअली मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशियोलॉजी की जो किताबें हैं वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये भी एक चैलेंज रहता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं दैट वी विल नॉट बी एबल टू गेट द काइंड ऑफ सोर्सेज और बुक्स इन हिंदी विच वी मुझे आर जो गेटिंग इन लगता इंग्लिश। है जो मटेरियल का डेफिनेटली लॉजिकली सोचे तो मटेरियल का फ़र्क इस सेंस में इसीलिए है कि जो हिंदी के जो न्यूज़पेपर हैं उनका कंटेंट उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का है। पर आपकी जैसी आपकी कोचिंग है विजन IAS, आप हिंदी मीडियम में भी उतना ही इफेक्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज दैट इज हाउ वी नीड टू इंक्लूड we talk about inclusion in our society. You are working for the inclusion in society. That is how the Hindi medium student don't pull them back because of just medium. So now I feel there is much more awareness about Hindi medium, and there are like material available in Hindi medium too. Or Samaj Shastra, I think MA BA everything is done in Hindi also. So all the books, like I read the IGNOU material, so it is available in Hindi also. So चाहे सोशियोलॉजी का भी मटेरियल पूरा हिंदी में अवेलेबल है, तो वो वाली दिक्कत नहीं है। बस मुझे न्यूज़पेपर का अभी भी लगता है कि जो न्यूज़पेपर का कंटेंट उतना बेटर नहीं है, पर अगर आप उसको मंथली करंट अफेयर से कंपेंसेट करते हो तो हमें जो है ना हमारे गैप्स फुलफिल करना है। तो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका करंट अफेयर्स पोर्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पा रहा है, तो उनको करंट अफेयर्स पे मेहनत करना है। मंथली करंट अफेयर्स उनको ज़्यादा अच्छे से करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। तो इस तरह से आपको जो ये कभी मुझे नहीं लगता कि जो मीडियम है आपको वो पुल बैक कर सकता है। आई डोंट कंसीडर दैट। And switching from Hindi medium to English medium was purely a logical choice for me, because I felt that I can express myself better in English now. तो मैंने किया, और अभी भी मुझे हिंदी और इंग्लिश अभी भी दोनों, अब मैं इंग्लिश ही बोल रही हूँ, हम लोग आजकल इंग्लिश ही बोलते हैं। जी जी। तो और सर मेरा जो इंटरव्यू था, जो UPSC का इंटरव्यू था इस बार, बसी सर का बोर्ड था, तो उन्होंने वो ऐसी बात करते थे जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं। इट वॉज नॉट प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश। तो जो मीडियम जो बोल रहे हैं ना बच्चे, जिनको लगता है कि मीडियम आपको पुल बैक कर सकता है, नहीं, आपको, मुझे नहीं लगता, उनको फर्क भी पड़ता है। they want content in the mains answers, and for in interview they want to see your personality, whether you able to handle the challenges and everything. So a medium is just a medium. तो आपने इंटरव्यू के लिए भी लैंग्वेज इंग्लिश ही रखी थी और या हिंदी रखी थी? जी, मैंने मीडियम इंग्लिश रखा था, पर मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं इंग्लिश इंटरव्यू में। अच्छा। जी, उन्होंने मुझसे हिंदी में बात करना शुरू किया, और ये इतना नेचुरल था कि वो फिर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिक्स बात होती रही। तो जो मुझे नहीं लगता है दे आर फ्लेक्सिबल एनफ टू अकोमोडेट यू,
if you are, you can also say that I am not comfortable in English or Hindi. I think they will consider, they medium is just a mode of communication and nothing else. So the inferiority ये बहुत बड़ी psychology से रेवलेशन थोड़ा है। बाहर आना चाहिए. जी 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 जी, ये बहुत बड़ी रेवलेशन है बिकॉज यू नो ये जो आपने अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया दैट आपकी जो चॉइस थी वो आपने इंग्लिश भरी थी, बट वहाँ पे ऐसी आपकी रेपो डेवलप हो गई अपने इंटरव्यूअर्स के साथ कि इंटरव्यूअर्स ने लीड किया हिंदी में, तो आपने भी जवाब दिया हिंदी में, और फिर वो वार्तालाप जो है वो उसी तरीके से नेचुरल बढ़ती चली गई। तो इंटरव्यू काफ़ी नेचुरल रहना चाहिए, ये एक बड़ी सही चीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेहा। द नेक्स्ट थिंग इज कि इनिशियली you face certain setbacks. For example, in the first attempt, I'll not say it, I consider all services to be very worthy. So you got into a very prestigious service, that is your IRPS, but there was a setback in the second attempt. So therefore, what मतलब आपके हिसाब से what are the do's and don'ts, और आपको अपने अंदर कौन कौन सी वीकनेस आइडेंटिफाई हुई, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने अपने अंदर क्या वीकनेस आइडेंटिफाई करी, कैसे आइडेंटिफाई करी, वो आप स्टूडेंट्स को बताएं ताकि स्टूडेंट्स भी उन चीजों का ध्यान रखें जिसके थ्रू उनको अपनी वीकनेस पता चलेगी। जी जी जी। तो एक मेरा जो मानना है, जब आपको फेलियर मिलती है तो आप बहुत डिजेक्टेड फील करते हो। तो जब मुझे मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, एक तो मुझे जब मैंने मेंस लिखा भी था तब भी मुझे लग रहा था कि ये उतना अच्छा नहीं गया, पर मेरा नहीं हुआ। जब आप लिस्ट में नाम देखते हो आपका नहीं होता है तो उतना डिजेक्शन आता है और बहुत ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि व्हाट जस्ट हैपेंड। तो जो मुझे लगा, मुझे 1-2 दिन मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लगा कि मेरा नहीं हुआ है। The moment I accepted that I have not been selected because of my mistakes, तो उस इवन मुझे बहुत कम टाइम लगा, वो मोमेंटरीली आता रहा कि अरे मेंस नहीं निकला था इस बार, बट वो 2 दिन के बाद फिर से मैंने मंथली करंट अफेयर्स उठा ली, मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। पर मुझे जो लगा कि जो भी फेलियर्स मिलते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका प्री में नहीं हुआ या मेंस में नहीं हुआ, इंटरव्यू में भी नहीं हुआ, या किसी भी स्टेज पे जब फेल हुआ, तो द फर्स्ट थिंग शुड बी cry it out to your friend, to your family, or in alone, whatever in whatever stage you are comfortable in, and then you accept that with gratitude. With gratitude means don't generalize it in the sense that I am not able to worth anything, I am not intelligent enough, and this is the end of thing, I don't think I should give the next attempt. Oh, I would try my best, but I don't think कि मेरा होगा। ये माइंडसेट भी नहीं चाहिए कि आप लगे हुए हैं तैयारी में और आपको लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि मेरा मेंस ही नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, या प्री नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। देयर आर मैनी पीपल who didn't qualify the pre for 1, 2, 3 years, then they topped in the examination. So it's the attitude that matter after the failure, कि उसको आपने कैसे लिया। तो मुझे टाइम लगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो मैंने फिर एनालिसिस करना शुरू किया कि मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ थी, जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपकी गलतियाँ थी, तो वो चीज़ आना आपके कंट्रोल में आ जाती है। देन यू फाउंड दैट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, और वो बहुत ज़रूरी होता है इस प्रिपरेशन में, कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल में ले लो अपने हाथ में, और ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर के उसमें मत छोड़ो कि अरे एग्जामिनर को मेरा समझ में नहीं आया, या फिर आप एक्सक्यूज़ देने लगते हो कि अरे मेरा सिलेबस ही मैंने कंप्लीट नहीं किया था, मुझे 5-10 मिनट और लग जाते तो मैं कर लेता। सो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस दैट शुड बी एक्सेप्टेड एज योर मिस्टेक्स। अगर आपको ये लगता है ये भी थे, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत थी, तो उसको एक्सेप्ट करो, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसी टाइम में उसी विद इन दोज कॉन्स्टेंट्स लॉट ऑफ पीपल आर क्लियरिंग यूपीएससी, तो एक्सक्यूज़ तो नहीं दे सकते हो आप उस मोमेंट में। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर मैंने एनालिसिस करना शुरू किया कि मेरी क्या मिस्टेक्स रही। तो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने जो मुझे समझ में आया कि आई रेड अ लॉट and that is not required in the examination. Reading a lot will not help you, because
the main thing is about mains examination is writing. You have to write, you should be able to write what you know about the question in the context. So I read a lot, but when I started my mains examination, so I have so much material in my head and I didn't consolidated that in my mind, and I was having problem in writing down the information on the paper. So this I found that I was more knowledgeable than my previous attempt. Definitely I worked harder than my previous attempt, definitely, but that hard work was not in the right direction. People ask me what is the right direction about, like people say that, oh, you should hard work but in right direction. So right direction is that do not do hard work in any direction that will not lead you to your goal. तो मैंने उसको ये नहीं सोचा कि मेंस एग्जामिनेशन क्या रिक्वायर्ड करता है. मेंस एग्जामिनेशन चाहता है इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस एंड द आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेस फॉलो नहीं करने हैं. आपको 200 वर्ड्स का आंसर लिखना है. तो ऑप्शनल में भी मैंने सोशियोलॉजी की मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली सेकेंड अटेम्प्ट में कि उतना मुझे बेनिफिट नहीं हुआ. So the one thing I realized after my second attempt that so the failure is very necessary in life to know that you can bounce back. Now I think I'm more confident in that sense. I think in third attempt I was less stressed. I would say I was less stressed because in third attempt I only thought of making the process best. I didn't think of the outcome. I think I planned for the next day. I planned for a week. I planned for a month. Then I didn't think about the outcome कि मेरी रैंक क्या आएगी या फिर I didn't think the irrelevant thing. और मैंने फिर ये भी सोचना बंद कर दिया कि मेरा मेंस में नहीं हुआ था. I only knew कि मुझे relevant पढ़ना है, मुझे इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. सो दिस हेल्प मी, द रियलाइजेशन हेल्प मी. और मुझे लगता है जो बच्चे फेल हो जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. तो जो भी फैमिली हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप, क्योंकि दीज आर द पीपल हु विल नेवर लीव यू इवन आफ्टर योर 5th 6th एनी फेलियर इन योर लाइफ. तो मुझे लगता है इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे को देना चाहिए. चाहे अगर आप एस्पिरेंट भी हो तो अपने फ्रेंड्स को मोटिवेशन दो. और ये मुझे बहुत लगता है क्योंकि आपका कंपटीशन आपके फ्रेंड से नहीं है इसमें. दिस इज़ द बिग एग्जामिनेशन एंड यू जस्ट हैव टू फाउंड सॉलिड सपोर्ट. बहुत सही बात है क्योंकि इतने सारे, मतलब हमें ये लगता है कि जो हमारा ग्रुप है दोस्तों का वही कॉम्पीट कर रहे हैं. फिर हम एक दूसरे से जलने लग जाते हैं कि अच्छा इस वाले टेस्ट में हमारे उस दोस्त के हमसे ज़्यादा मार्क्स आ गए. अरे 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो कोई आपका जो फ्रेंड सर्कल वो एक सैम्पल सेट नहीं है. कंपैरिजन नहीं करना है. और एक और चीज़, जैसे मैं मल्टीपल इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ और हर टॉपर में मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र में आती है, वो ये है कि कहीं ना कहीं जैसे भगवत गीता में है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो कहीं ना कहीं इन डिफरेंट वर्ड्स वी कीप ऑन सेइंग यही चीज़ आ जाती है कि व्हेन यू गेट इनटू द स्टडी मोड देन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर रैंक. यू आर नॉट थिंकिंग ओके टुडे आई एम रीडिंग दिस चैप्टर बिकॉज आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर. यू समवेयर गेट इनटू द मोड ऑफ द प्रिपरेशन. तो वो चीज़ एक बहुत सही है. हाँ, तो नेहा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कम सोर्सेज से पढ़ना चाहिए और उन्हीं को रिवाइज करना चाहिए. इनफैक्ट मतलब यू स्टडीड मोर फॉर जितना रिक्वायरमेंट नहीं था आपने उतना पढ़ाई किया. तो अगर सोशलॉजी मेरा ऑप्शनल है तो क्या कुछ ऐसे 3-4 सोर्सेज हैं जो आप कहेंगे कि बस इन 2-3 सोर्सेज पे या 3-4 सोर्सेज पे फोकस करो एंड इन्हीं को बार बार करो? जी, फॉर सोशोलॉजी मैंने हर जो टॉपिक है वो एक ही सोर्स से पढ़ा था. ये है कि मैंने बहुत सारी बुक्स रेफ़र करी थी, पर जो एक टॉपिक, सिलेबस का एक टॉपिक मैंने एक ही जगह से तैयार किया था. तो जो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने हेरालम्बस जो ब्लू वन है, जो बिग वन, उसको रेफ़र किया था मैंने फॉर सम टॉपिक्स. फिर एक रिड्जर होती है फॉर थिंकर्स, मैंने उसको रेफ़र किया था. एंड इग्नू मटेरियल मैंने रेफ़र किया था
फॉर क्लैरिटी, अगर मुझे लगता है मुझे और इलेबोरेटेड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और सेकंड पेपर के लिए मेनली मैंने एक ये इग्नू का मटेरियल है, उसमें इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, वो रेफ़र किया था और डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा था। जैसे इंटरनेट पे मैं टॉपिक सर्च कर लेती थी, उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स उससे लिए, न्यूज़पेपर से लिए। फिर ईपीडब्ल्यू के कुछ आर्टिकल्स हैं, वहाँ से मैंने कुछ कुछ पोर्शन लिया, जैसे कास्ट का, फैमिली का कुछ कुछ पोर्शन उसमें अच्छे से एक्सप्लेन था। तो इस सेकंड पेपर डायनेमिक होता है, तो उसकी थोड़ा सा जो तैयारी होती है वो भी अलग तरीके की होती है। फर्स्ट पेपर स्टैटिक था, तो फर्स्ट पेपर तो मैंने बहुत ही फिक्स्ड तैयारी की थी। सेकंड पेपर के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा एफर्ट मारना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डायनेमिक होता है और वो थोड़ा चेंज होता रहता है उसका जो आंसर्स का, क्वेश्चंस का पैटर्न। So, इसमें there is another important aspect जो कि which is hidden in your answer. It is the paper 2, and paper 2 at times, like for example, you only mentioned that you also took help of the current affairs to supplement your paper 2. So, how did you use your newspaper, or how did you use your current affairs for helping you in the paper 2 of sociology? That is part one of my question. And second part of my question is, because we are on the topic, so what is your strategy, what was your strategy for current affairs? So specifically for sociology second paper, the application of the knowledge is important. So application of knowledge can only be visible when you able to connect the recent newses to the topic of syllabus. So what I used to do whenever I used to read newspaper, I used to differentiate if there is some caste controversy in some village, then I use that example to show the caste atrocities in India. Whenever there was there was article regarding women empowerment or something, so I used that in conclusion for showing that this is how in ground आप empower कर सकते हो. So that gives the feel that sociology is applied in your answers. So what I make notes of that examples. So every topic was divided in my notes copy, and I consolidated examples from newspaper on those topics. So whenever I found some question on family, so I used to my mind used to click like, okay, that those were the example I have to include in my answer, because you don't find lot of time to think when you actually write the answers in the mains examination. So बहुत पहले से ही तैयारी करना होता है कि आपको अगर एग्जाम्पल्स इंक्लूड भी करना है, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि ओके आई हैव प्रिपेयर्ड द करंट अफेयर्स, तो मैं कुछ तो उसमें इंक्लूड कर लूँगी. नो, इट विल नॉट हैपन अनटिल अनलेस यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द नोट्स प्रीवियसली. अच्छे से आपने उसको कंसोलिडेट करके रखा हुआ है कि इस टॉपिक में मैं ये वाला एग्जाम्पल लिखूँगी, तब तक वो इंक्लूड नहीं हो सकता. और देन सेकेंडली जो सोशोलॉजी होती है, सोशोलॉजी में मैंने एग्जाम्पल डेली लाइफ के भी बहुत लिखे. जैसे कि आप जो भी सोशोलॉजी का सेकंड पेपर जो होता है, वो ऐसा वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं लगना चाहिए, बहुत बुकिश नहीं लगना चाहिए. दैट शुड शो योर नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ, कहते हैं कि सोशोलॉजिकल डायमेंशंस. the questions are like write the sociology of Me Too movement. So you are that time we were having so much data what news is regarding Me Too movement, but sociologically see you have to think, okay, the Me Too movement was not that in बहुत डेप्थ में रूरल बैकग्राउंड में नहीं गया. रूरल जो एरिया था, विलेज जो एरिया है, वहाँ पे मी टू मूवमेंट का उतना रेलिवेंस नहीं है. ये जो उसका जो उतना रेलिवेंस अब बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट है, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, पर जिस टाइम क्वेश्चन आया था उस टाइम इतना नहीं था कि रूरल की जो वुमेन है वो मी टू मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं.
सो इट वॉज नॉट दैट। सो आपको वो डायमेंशन जो आपकी थिंकिंग है, जो आपको आपकी ये कोई जो क्वेश्चंस होते हैं ये पहले से प्रिपेयर नहीं है, बट अगर आपने मी टू मूवमेंट पढ़ते टाइम ये सोचा है कि अच्छा इसकी सोशलॉजी क्या हो सकती है, किन अलग अलग डायमेंशन में इसको देखा जा सकता है, तो आप वुमेन को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। रूरल वुमेन है, अर्बन वुमेन है, मिडिल क्लास वुमेन है, अपर क्लास वुमेन है, लो क्लास वुमेन है, फिर फार्मर वुमेन्स हैं। तो वुमेन की भी बहुत सब कैटेगरी बन सकती हैं। तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा सेकंड पेपर के लिए। और जो आपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो पूछा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे की थी, तो मैंने एक न्यूज़पेपर फॉलो किया था। कुछ भी, जैसे मैंने द हिंदू पढ़ा था और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, दोनों का कंटेंट अच्छा है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। और मैंने एक मंथली करंट अफेयर्स, मैंने विजन की फॉलो की थी, मंथली करंट अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जैसे मेंस के टाइम में कंसोलिडेटेड आपकी जो निकलती है 365, उसमें भी काफ़ी जैसे सिक्योरिटी पार्ट है, उसमें पूरा पहले से दिया होता है, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने लग जाते हो तो फिर आप कंसोलिडेटेड नहीं रख पाते हो। तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड आपको चाहिए होता है 200 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए। तो दैट रियली हेल्प मी। और करंट अफेयर्स का मैंने क्या किया था, मैंने नोट्स बनाया था पेपर वाइज। पेपर 2 के मैंने ऐसा कर लिया था कि मुझे 40 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के जो एकदम तैयार करने हैं, तो उन 40 टॉपिक्स में मेरे 200 वर्ड्स एकदम प्रिपेयर्ड थे कि अच्छा इफ़ समथिंग इज़ रिलेटेड टू दिस, तो मैं ये फैक्ट्स उसमें डालूंगी, ये आर्ग्यूमेंट है फॉर में और उसमें आगे इसमें। तो इससे क्या होता है कि जो मेरे को कंप्लीशन ऑफ पेपर मेरा जल्दी हो जाता था। इनफैक्ट जो मेरा मेंस का पेपर था उसमें कभी मुझे टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं आया, क्योंकि आई ऑलवेज यूज टू फील ओ दिस तो क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड। इवन तो मैंने उसका टेस्ट सीरीज में नहीं लिखा होता था, पर मैंने वो नोट्स में सोचा होता था, या फिर मैंने उसका पहले से इंट्रो सोच रखा तो होता था, और मैंने ये सोच रखा होता था इसमें फॉर में ये 4-5 आर्ग्यूमेंट लिख सकती हूँ। तो वो चीज़ आपको बहुत प्रिपेयर कर देती है। और टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द राइटिंग स्पीड। सो जो बच्चे थोड़ा ये सोचते हैं कि उनकी राइटिंग की स्पीड कम है, और जैसे उनको या फ्लुएंसी कम है, मान लो अगर कोई हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच हो रहा है, तो मैं ये सोच सकती थी कि अरे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जो हिंदी में मेरे थॉट्स आ रहे हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा नहीं है। जो राइटिंग की स्पीड जो होती है वो मोर डिटरमाइंड बाय द रिविजन, मेन रिविजन, क्योंकि आपको एकदम क्लिक करता है वो, आपको पहले से ही पता है कि अच्छा फॉर आर्ग्यूमेंट्स में ये लिखने वाली हूँ, तो उससे स्पीड भी आपकी बढ़ जाती है। तो आपको थिंकिंग जो टाइम है ना, दैट डिलेज योर टाइम मैनेजमेंट। सो ये मुझे लगता है करंट अफेयर्स में आप पूरा पेपर 2 का 40-50 टॉपिक्स ले लीजिए, पेपर 3 के टॉपिक्स ले लीजिए। एथिक्स में आप उससे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ करिए। कोचिंग का मटेरियल खूब मिलता है, उसमें आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करिए। इतना जब आप करते हो, और जो केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वहाँ पे भी आप उसको डाल सकते हो। तो जो सारा जो पेपर 1, 2, 3, 4 मैंने बहुत इंटरकनेक्टेड पढ़ा था, और मैंने ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक्स में मैं इकोनॉमिक डायमेंशन ही लिख रही हूँ। आई यूज़ टू फील दैट वो सारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतनी इंटीग्रेटेड होते हैं कि उनको इतना सेपरेशन में देखा ही नहीं जा सकता है। तो आप कहीं की भी नॉलेज कहीं पे भी डाल सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस आता है जब आपने बहुत प्रैक्टिस बहुत करी होती है, जब आपने सोचा बहुत होता है अपने दिमाग में कि अच्छा इफ़ दिस क्वेश्चन कम, व्हाट विल बी my approach to write this answer, what will I write in conclusion, what will I write in introduction, so that needs to be pre-prepared. मतलब एक जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि मतलब जब भी whenever we are reading any current affairs either from the newspaper or from the monthly magazines, then जब भी आप पढ़ते थे तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि if this is the issue then what are the reasons for this issue, what are the impacts of these issues, and then what are the suggested solutions, and so उस तरीके से आप एक ढांचा उसका बना लेती थी, जो कि शायद आपने कहा कि आप हर इशू के ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट ऑन कंक्लूजन में कर लेती थी। तो बेसिकली हमें एक टॉपिकल व्यू जनरेट करना है कि कोई भी हम मुद्दा पकड़ते हैं अगर, तो उसका मतलब उसके 4 रीजन या 5 रीजन की वो इशू अराइज क्यों हुआ है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। इस तरीके से अगर हम एक एनालिटिकल अप्रोच रखें न्यूज़पेपर पढ़ते समय, तो ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है आपके जवाब से। Am I right? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। Okay.
ठीक है नेहा। अब एक और चीज़ आ जाती है कि इसमें आपने एक और चीज़ मेंशन करी कि GS 1 2 3 4 आप एग्जैक्टली यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, बट एक डिफरेंशिएशन जो स्टूडेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस की करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, और इट शुड बी लाइक फॉर सम मंथ्स यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड देन यू शिफ्ट टू प्रिपरेशन ऑफ मेंस? किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? तो वो जो लोग प्री और मेंस की सेपरेट तैयारी करते हैं तो उनकी बुक्स तो डिफरेंट होती होंगी प्री की और मेंस की, पर ऐसा तो नहीं है। तो द बुक्स यू रिफर फॉर प्री एंड मेंस आर द सेम। आप वही बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, तो जो प्रिपरेशन दैट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड ओनली। The only जी। thing is whenever pre is closed, then you strategize for prelims only. Then you don't think about mains. Then you don't think. Then you don't read the book from mains point of view, for or against or all this introduction and conclusion and everything. You try to memorize the factual information. So मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ का आपकी प्रिपरेशन, आप पहले टेस्ट दे लीजिए, मॉक टेस्ट दे लीजिए 2 महीने पहले, और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो 3 महीने पहले दे लीजिए प्रीलिम्स के लिए। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आपका फुल लेंथ में आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपको कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो और आपको कितनी प्रिपरेशन और करनी है। तो वहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अच्छा 1 मंथ आप और अगर एथिक्स ऐसे और मेंस के एग्ज़ाम, मेंस का जो तैयारी है उसको दे सकते हो तो दे सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है तो वहीं से फिर प्री का एग्ज़ाम तैयारी करने में लग जाइए। प्री का अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होता है मेन से। प्री इज़ ऑलवेज अबाउट मोर रिविजन, मोर मॉक टेस्ट। वहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ करते हो, वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट भी होना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एब्सोल्युटली चीज़ें आती ही आती हैं, वहाँ पे आपका गैस वर्क भी काम करता है, क्योंकि आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन होता है तो आप उससे आप स्मार्टली एलिमिनेट भी कर सकते हो। पर मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आप अगर कुछ तुक्के मार रहे हो तो डेफिनेटली दैट विल काउंट एज अ माइनस इन योर आंसर्स। तो जी। वहाँ पे मेंस में एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो जाती है इन द ऑन द बेसिस ऑफ आपको राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, आप उतना रीडिंग नहीं चाहिए, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा वहाँ पे एनालिटिकल जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि आपने बिल्कुल अच्छे से कंक्लूड किया था। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से तो इंटीग्रेटेड ही रखना चाहिए। तो इसमें एक और मेरे को डाउट है कि नोट्स मेकिंग का, बिकॉज तो क्या ऐसा रखना चाहिए कि पहली बात की नोट्स मेकिंग आपके हिसाब से क्या हर सब्जेक्ट की करनी चाहिए, और या फिर उसके बारे में सिलेक्टिव रहना चाहिए? और फिर नोट्स मेकिंग क्या प्रीलिम्स की अलग से करनी चाहिए, क्या हम फैक्ट्स वगैरह सेपरेटली लिख लें एक जगह पे, इस टाइप की चीजें, और या फिर मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहनी चाहिए नोट्स मेकिंग के ऊपर? तो नोट्स मेकिंग का क्या रोल है मतलब इस तरीके से? जो नोट्स मेकिंग मुझे लगता है वो वन थिंग दैट इट डू इज द किलिंग द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस एंड वास्टनेस ऑफ द एग्जाम। तो ये आपको फियर को बहुत कम कर देती है नोट्स मेकिंग। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन प्रीलिम्स के लिए आपको नोट मेकिंग तब करनी चाहिए जब आपको लगता है कि आपका जो वो है स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी प्री की प्रिपरेशन कैसी है। बहुत लोग हैं जिनको प्री से काफ़ी डर लगता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए नोट्स मेकिंग के लिए। यही दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्योंकि मुझे नहीं लगा प्री का, मैंने एक बुक रेफ़र किया हर सब्जेक्ट का और मैंने मॉक टेस्ट दिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता प्री का उतना मुझे चाहिए था। क्योंकि तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनका प्री रह जा रहा है या फिर प्री में उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, तो वो जैसे रिपोर्ट्स हैं वो एक जगह आप कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप एनवायरनमेंट का कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद करना ही होता है। नेशनल पार्क्स हैं या फिर ये हेरिटेज साइट्स हैं, तो यहाँ इन सब के नोट्स बना सकते हो। एक रिपोर्ट तो मैं बता ही चुकी हूँ, वो आती है। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो डेफिनेटली आती हैं, तो वहाँ पे तो आप फॉल्ट कर ही नहीं सकते हो।
तो वो उन चीज़ों का आप नोट्स बना लीजिए, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट कर देता है, और कॉन्फिडेंट मैटर्स अ लॉट इन वाइल आंसरिंग इन प्रीलिम्स स्पेशली, क्योंकि मेंस में क्या होता है, जितना आपने प्रैक्टिस किया होता है आप लिख देते हो। प्री में अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि अगर मान लो आपके स्टार्टिंग के 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए, तो मैं एक बार दे रही थी, सेकेंड अटेम्प्ट आई थिंक थर्ड ये दिस अटेम्प्ट ओनली, तो वो मेरा जो सेट था वो इस तरह से डिज़ाइन था कि मेरे जो स्टार्टिंग का पहला और दूसरा जो था वो आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज़्यादा पार्ट आ गया था, और वो मैं लास्ट टाइम पे बहुत रिवाइज नहीं कर पाई थी, और रिवाइज नहीं कर पाई थी तो आर्ट एंड कल्चर इज़ मोस्टली फैक्चुअल, तो वो मुझे नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे आपका मोरल डाउन हो सकता है कि आपको लगातार 7-8 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और मेरा स्कोर काफ़ी ठीक है, आई थिंक 116 इस तरह का कुछ रहा होगा इस बार, जितना मैंने की से देखा। तो फिर जो मेरा उस टाइम मेरा काफी अच्छा कॉन्फिडेंस डाउन स्कोर हो सकता था, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता था, पर मैंने ये सोचा कि आर्ट एंड कल्चर का ही थोड़ी आता है पार्ट, और भी आता है, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस मैटर्स मोर। वहाँ पे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा वो हो गए कि अरे मुझे आ नहीं रहे, आप पैनिक कर गए, तो दैट पैनिक नीड्स टू बी हैंडल्ड प्री के पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए। जैसे मॉक दे रहे हो आप, तो आप पैनिक कर रहे हो, तो फिर आपको उस पर काम करना है, तो वो मेन एग्जामिनेशन जब हो प्री का या मेंस का, तो वहाँ के लिए आप पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक का मतलब ये नहीं है कि आपको डर लगने लगा, आप गलत करने लगे अचानक से, आपको उतना दिमाग नहीं चल रहा है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि ये जो आपका नोट्स मेकिंग है ना, वो लास्ट टाइम रिवाइज आप कर लेते हो तो आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है, क्वेश्चंस भी और ज़्यादा सही होंगे। तो प्री के पहले कर लेनी चाहिए जिनको थोड़ा सा डर लगता है प्री से, क्योंकि प्री का ऐसा कुछ नहीं है कि प्री नहीं हो रहा है तो आप हो सकता है आप अगली बार टॉप भी कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में ये है, मेंस में थोड़ा नहीं, एक सेकंड, मेंस से पहले मैं थोड़ा सा आपकी प्री की स्ट्रेटेजी भी जानना चाहूंगा। तो आप क्या करते थी, क्योंकि आपने मेंशन किया कि गेस वर्क भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके इसमें प्रीलिम्स में, तो आप क्या करती थी? क्या आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी, या फिर जहां पे आपको लगता था कि मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला आंसर है वही टिक करूंगी, या फिर जहां पे आपको लगता था कि यार मतलब 50-50 है वो भी आप कर देते? क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी? तो जो प्री में मैं बहुत सेफ खेलती थी। प्री में मुझे जितना मैंने मॉक जब मैंने प्रैक्टिस किए तो मुझे समझ में आया कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी है। तो मैं फाइनल पेपर में भी मैंने काफ़ी लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता था अगर इफ़ आई एम अटेम्प्टिंग 80 क्वेश्चन देन आई थिंक 70 और 67-65 वुड बी राइट, तो उतने में मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। सो प्री नीड्स टू बी टेकन एज अ क्वालिफाइंग स्टेज ओनली। तो वहाँ पे आपको सेफ खेलना है, और आपको लगता है आपका जो सेफ जोन है वो आप अगर 95 अटेम्प्ट करते हो तब जाके पहुँच पाता है। तो आप जो सेम पेपर है, सेम ईज का पेपर है, उसी में आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 90 अटेम्प्ट करिए और उसी में 80 करिए, तो आप देखिए कि आपके में स्कोर किस में ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे लगता है प्री में बहुत ज़्यादा एनालिसिस बहुत मैटर करता है, और जब आप मॉक टेस्ट करते हो तो मैंने इतना एनालिसिस कर लिया था कि मुझे लगा कि अगर मैं 80 अटेम्प्ट करूँगी तो मेरा उतना, तो मैं उतने में करती थी। गैस वर्क काम कर जाता है। मुझे लगता है कि मेरा प्री का स्कोर और भी अच्छा आ सकता था, पर वो नीडेड नहीं था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया वहाँ पे, जहाँ मुझे लगा कि मुझे नहीं रिस्क लेना चाहिए तो मैंने नहीं लिया। तो और गैस वर्क वो काम करता है इतना, रिवीजन के साथ आपका बहुत काम करता है। बहुत लोग 150-160 भी स्कोर करते हैं प्रीलिम्स में। आई डोंट थिंक उनको एब्सोल्युटली आंसर्स पता होते हैं उनके, पर जो उनकी वो रहता है, जो इंटेलिजेंट गैस वर्क होता है वो काम करता है एलिमिनेट करने में। तो प्री में तो इस बार भी मैंने शायद 1 मंथ पहले पढ़ाई की थी, उतना ही मैंने जो सेम बुक्स हैं वो रिवाइज कर लिया था, मैंने मॉक्स दे लिए थे, मॉक्स रिवाइज किए थे। The only two things I did, the revision and the mock. Prelims is all about the revision and practicing the mock. That I feel, because prelims में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं जो बच्चे जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए या फिर कुछ के लिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ले लीजिए, मंथली मैगज़ीन, और आप न्यूज़पेपर तो रोज़ फॉलो करते हो, ज़रूरी नहीं आपको उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उतने में हो जाता है कि आप मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हो और उसका रिवीजन का भी आप कर लो 4-5 पर एटलीस्ट, जबकि आप तो रिवीजन इज़ मस्ट, एंड वन सोर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स।
ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस ही आने हैं, आपको बस 65-70 क्वेश्चन आने हैं, तो ये यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, सो डोंट पुश योरसेल्फ। आप अपना सेफ जोन में आने की कोशिश करिए, वो यही मैटर करता है। मतलब मोटा मोटी आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपकी नोटिस करी कि आपने कहा कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले आप मॉक्स लिखना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो आपका 3 महीने पहले डेफिनेटली खत्म हो जाना चाहिए, और आपकी जो लास्ट के 3 महीने हैं या 2 महीने हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस रिविजन में जाने चाहिए, है ना जी? जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल, ठीक ठीक। और अगर आपका अच्छा, मान अब लीजिए जी आपका जी कोई एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, जैसे बहुत लोगों को पैनिक जी फील होता है कि उनका वो कुछ एक आध सब्जेक्ट छोड़ के बैठे होते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने मिडीवल नहीं पढ़ी है या फिर एंशियंट नहीं पढ़ी है, तो उनको ऐसा लगता जी है कि इस बार तो प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा। बहुत लोग जी प्रीलिम्स लिखते भी नहीं है, मैंने बहुत फ्रेंड्स देखे अपने कि जो जिनको लग रहा है कि नहीं इस बार होगा नहीं, तो लिखते ही नहीं है। तो काफ़ी जो पैनिक है ना, तो वो मुझे लगता है इवन इफ आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट भी नहीं है, देन जी ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ चांस। ऐसा नहीं होता कि आप एक सब्जेक्ट नहीं आएगी तो उसमें कितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और इवन उसके जी जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके किसी न किसी नॉलेज से हो सकते हैं। तो डेफिनेटली गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन इन प्री, वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। सो गिव प्री एज इफ यू विल क्वालिफाई। तो उससे क्या होता है ना, आपका जो गैस वर्क वो भी काम करेगा, आपका एटीट्यूड सही रहेगा ना, कि आप अगर 60 क्वेश्चंस करेंगे तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से क्वेश्चन देखते हो, तो आपको वो आप जी एलिमिनेट की ताकत तभी आती है जब आप एक पॉजिटिविटी से उस क्वेश्चन को देखते हो कि ओ आई कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। तो वो बहुत ज़रूरी है प्री में, रादर देन थिंकिंग कि अरे मेरी आर्ट एंड नहीं, कल्चर और रह गई है, एलिमिनेशन मैंने के लिए तो medieval नहीं कूल पढ़ी है। माइंड बड़ा जरूरी रहता है जी। जी 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 सर, जी। डेफिनेटली। तो अच्छा, तो सेकंड चीज एक ये है कि मतलब इसको मैं कहूँगा इंटर वॉर ईयर्स मतलब कि इंटर वॉर पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो वहाँ पे तो मेजर फोकस मेंस हो जाता होगा, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग पे सारा जोर डाल दिया होगा आपने। जी जी, मुझे लगता है जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने नहीं किया वो थी आंसर राइटिंग। तो आप जैसे ही प्री आपका ख़त्म होता है वैसे ही आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। और ये मुझे लगता है प्री में भी वो है, अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हो रहा है तो मॉक देना शुरू कर दीजिए। और मेंस में भी अगर जैसे मान लो आप प्री का आपका ख़त्म हुआ है तो ऑब्वियसली यू हैव रेड द एटलीस्ट लक्ष्मीकांत, तो आप पॉलिटी से स्टार्ट कर दीजिए, पॉलिटी के स्टैटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करिए। तो लास्ट टाइम के लिए आंसर राइटिंग नहीं रखनी चाहिए, मुझे लगता है डेली आंसर राइटिंग करिए। उससे क्या होता है, आपको आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है, आपको ये नहीं लगता है कि आप कहीं लैग कर रहे हो, क्योंकि वो 3-4 मंथ्स इतना हेक्टिक होता है। आपकी जो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ते हो कि अच्छा मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तो फिर वो और मतलब वो जो एक्यूमुलेट बहुत अच्छे से होता है दिमाग में। जी, तो फिर मतलब राइटिंग आप मतलब स्टार्टिंग से बट स्टार्ट बट कर नहीं, बट दीजिए। एक मेरे अंदर डाउट आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे कोई एक या दो मेरे ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं जो कि मेरे प्रिपेयर्ड नहीं है। लेट्स से कि मेरा ज्योग्राफी प्रिपेयर्ड नहीं है, जैसे आपका भी वीक था ज्योग्राफी आप कह रहे हैं, तो लेट ज्योग्राफी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लेट्स से ज्योग्राफी या फिर कोई और सब्जेक्ट मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मुझे आप कह रहे हैं कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए, कम से कम जो मेरे टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए मैं आंसर राइटिंग अपनी शुरू कर दूं। जी जी जी, एक्चुअली अगर मान लीजिए आपका ज्योग्राफी आपका छूटा हुआ है या फिर आपने कंप्लीट नहीं किया है, पर जो आपका फर्स्ट पेपर आएगा वो ज्योग्राफी का ही नहीं आए ज्योग्राफी, लेकिन फर्स्ट पेपर में पोर्शन बहुत होता है, आई थिंक हाफ ऑफ द पेपर इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी तो ऐसी सब्जेक्ट है जिसको इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट सब में ज्योग्राफी काउंट हो जाता है। तो आई एम जी नॉट सेइंग तो नॉट कंप्लीटिंग द सिलेबस, आई एम जस्ट सेइंग डोंट गिव एक्सक्यूज कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसलिए आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। ये एक्सक्यूज हो जी जाता है सर, क्योंकि जी मेरा भी जी मैं सेकंड जो आप सिलेबस इतना वास्ट होता है सर कि उसको कंप्लीट करते करते आपको फील होता है कि ये आप कंप्लीट कर लेंगे तब आंसर राइटिंग करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा तब आंसर राइटिंग करेंगे, बिकॉज मेन्स इज सो मच हेक्टिक, सो मैनी टॉपिक्स नीड्स टू बी कवर्ड। कुछ भी करंट अफेयर्स में हो गया दैट विल बी एडेड इन द मेन सिलेबस। तो वहाँ पे आप एक्सक्यूजेस देना बंद करो, क्योंकि आप क्योंकि राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग इन मेंस।
डेफिनेटली, क्योंकि आपने ज्योग्राफी जी। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी की है तब भी आप कुछ तो कर लोगे। अगर अर्थक्वेक का कोई क्वेश्चन आया है देन यू नो द मेन अर्थक्वेक, यहाँ पे आपका डीप अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे इस तरह से, तो आपको कुछ तो नॉलेज होती है। तो आप जो 20 मार्कर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तब भी वो आप लिख पाओगे। ये है कि आप बहुत इतना फ्रीक्वेंटली नहीं लिख पाओगे ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, पर आप लिख पाओगे। तो जो भी आपको, जिससे भी आपको कंफर्टेबल है स्टार्ट करने में आंसर राइटिंग, उस सब्जेक्ट से शुरू करिए। पॉलिटी से शुरू करिए, करंट अफेयर्स से शुरू कर दीजिए। मान लो आपने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको लगता है कि अच्छा इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। उससे तो क्या होता है आपने ना, कोई आप टेस्ट एक सीरीज ज्वाइन करी थी इस चीज के लिए फिर? मैंने जो मेन आंसर राइटिंग करी थी वो मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लिखे थे। इस बार मैंने आई थिंक आई मेनली फोकस्ड ऑन टेस्ट सीरीज ओनली। जितनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज मुझे मिली, जितने क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे, आई मेक श्योर कि अगर मैं उनको ना लिखूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे वो कवर हो गए हैं। तो जी। मैंने विजन का भी मैंने पूरा पूरा टेस्ट सीरीज कर लिया था, इन द सेंस कि मुझे पता था कि अच्छा अगर पॉलिटी का ये स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख सकती हूँ, या ये करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लिख सकती हूँ। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से मैंने ये नहीं काउंट भी नहीं किया मैंने कि मैंने कितने क्वेश्चन पेपर लिखे होंगे, या फिर मैंने अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है आंसर लिखने के लिए तो एटलीस्ट उस जो भी टॉपिक है, या फिर आप लेके बैठिए क्वेश्चन पेपर और आप सोचिए कि अच्छा इसमें क्या क्या आउटलाइन हो सकती हैं, अगर आपका बहुत ही सिलेबस बाकी है तो। पर आंसर राइटिंग इज मस्ट। जी। तो एथिक्स और एसे और जीएस 1 2 3, मतलब मैं आपको पूरा फ्लोर दे रहा हूँ, मतलब आप फ्रीली आप जो बताना चाहें कि क्या एसे के लिए कुछ सेपरेटली करना चाहिए, क्या एथिक्स के लिए, क्योंकि वो पूरा 250 नंबर का एक पेपर आता है, क्या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। तो मतलब मैं आपको पूरा फ्लोर दे रहा हूँ, आपको जो लगता है कि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, है जो चीज़ें आपको लगी, जो आपने अपने स्ट्रगल के थ्रू पहचानी, वो ज़रा एक बार आप बता दें तो काफ़ी हेल्प होगी। जी, एक स्टार्ट करती हूँ मैं एथिक्स के पेपर से, क्योंकि मुझे लगता है बहुत हाई स्कोरिंग पेपर होता है, बहुत कम एफर्ट से आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो जितना आप सेकेंड पेपर में, थर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ के आप मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, और एथिक्स में करा जा सकता है। तो एथिक्स में जो मेन करो, जो आपका आंसर्स हैं, जो आंसर राइटिंग है वो थोड़ा पर्सनलाइज होनी चाहिए। पर्सनलाइज इन द सेंस इट शुड नॉट शो द बुकिश आंसर, इट शुड नॉट बी लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी आंसर कि आपने कहीं से रट्टा मारा और लिख दिया। सो एथिक्स, बिकॉज एथिक्स आर रियली बहुत पर्सनल होता है, तो वो द एग्जामिनर वांट्स टू नो अबाउट यू। बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस मीन टू यू, आप अपनी लाइफ से इंसिडेंट बताइए कुछ इस तरह का। और एक बहुत टेस्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि आप कौन 2 वुमेन आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगती हैं जिन्होंने आपकी लाइफ पे इम्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे कि एथिक्स के जो आंसर हैं दैट शुड बी शो, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखा के लाना चाहिए। तो जैसे कि मेरे केस में मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत पार्टिसिपेट किया है, तो इन द सेंस दो आई एम इंट्रोवर्ट बाय नेचर, बट मेरा एक्सप्रेशन जो एथिक्स के पेपर में था वो मैंने उतना, जो मेरा ऑनेस्ट, जो मुझे लगा कि आई शुड फील दिस, आई रोट दैट डाउन एंड दैट रियली हेल्प मी। वो बहुत मैकेनिकल आंसर नहीं लगा। तो जो भी लोग जिनको लगता है कि एथिक्स में ज़्यादा मार्क्स, और केस स्टडीज़ ऑल्सो, केस स्टडीज़ में थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आई थिंक केस स्टडीज़ आर मोर स्कोरिंग ऑल्सो, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो आप स्टार्टिंग में ही ऐसा करिए कि आप डेली एक केस स्टडी लिख लीजिए, उसमें मज़ा भी आता है। यू फील दैट उसमें इमेजिन करवाते हैं, कंसिडर योर सेल्फ एज SDM हियर, DM हियर, सो इट्स ऑल द वे मोर एक्साइटिंग फॉर मी। आई ऑलवेज यूज टू in that situation what will I do, so I really was very very keenly interested in such situation, reaction, questions and everything. so वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोच के, जितनी भी आपको लगता है कि आपको जितनी नॉलेज है और आप जो करेंगे,
तो उसमें जो आपको लग रहा है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोच रहे हैं, आप ये करेंगे तो क्यों करेंगे. तो द केस स्टडीज नीड्स टू बी वेरी एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि एग्जामिनर को आपका थॉट प्रोसेस समझ में आए कि आपका सिचुएशन आपने कैसे टैकल किया है. किसी भी एक सिचुएशन को संभालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो और एंड आंसर उसमें इंटेंशन देखना चाहिए आपका कि आपका इंटेंशन जो था वो सिचुएशन को टैकल करने का था. तो कभी कभी होता था कि जो आंसर जो कि टेस्ट सीरीज के आंसर्स हैं और मेरे आंसर से कभी कभी डिफर करता था. तो पर मैंने देखा कि मुझे जब वो चेक होता था तो मार्क्स अच्छे मिल जाते थे. तो तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट द वन वे टू सॉल्व एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम. तो वहाँ आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है. केस स्टडी तो डेफिनेटली प्रैक्टिस. और जो आपके जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं एथिक्स के, वहाँ पे आप ऐसा करिए कि आप पर्सनल लाइफ से एग्जांपल निकालना शुरू करिए. आप जैसे कुछ भी है, इंटीग्रिटी का कोई क्वेश्चन है, आपको लगा कि आपकी दोस्त में या फिर आपने कहीं भी आपको लगा कि ओ सच पर्सन इज सो, वो जो बोलता है वही करता है, तो वहाँ पे आपको उसकी कौन से इंसिडेंट से वो लगा तो उसको लिखिए पेपर में. तो मैंने जो भी आंसर्स लिखे तो उसमें मैंने अपनी पूरी लाइफ में मुझे जहाँ से जो लगा था वो मैंने लिखा. तो उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी. जो आपका सिलेबस का टॉपिक है वो उठाइए, उसमें आपको सोचिए कि मेरी पर्सनल लाइफ से मैं इसमें क्या कनेक्ट कर सकती हूँ. और एक जनरल एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, पर जनरल एग्जाम्पल सबने लिखा होता है तो फिर उससे क्या होता है, वो आप इतना नोवेल्टी नहीं आती है आपके आंसर में. एथिक्स में और ऐसे में मुझे लगता है नोवेल्टी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते होंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं कि दे वांट टू नो न्यू थिंग्स, दे वांट टू रीड समथिंग. तो उनको जितना सच्चाई दिखती है ना पेपर में, तो उसके आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. तो अपने पर्सनल लाइफ में जाइए. बहुत ज़्यादा एथिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी. प्लस वो भी तो बोर हो जाते होंगे ना कि हर बच्चा इतना ज्ञान दे रहा है कि गांधी जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा. हाँ, तो उनको भी वो नकलीपन उसमें दिखता होगा. बहुत ज़्यादा कोट्स और एवरीथिंग मैंने नहीं यूज़ किया, ना मैंने ऐसे में यूज़ किया ना एथिक्स में यूज़ किया. मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाता है और बहुत ज़्यादा कुछ लोग करते हैं, दैट इज़ गुड. अगर उनके लिए काम करता है मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी. पर मुझे ऐसा लगता था कि जो कि आपका नेचुरल आपको जो लग रहा है उस सिचुएशन में या कुछ, तो वो जो आप लिखते हैं वो जो जेन्युइननेस आती है आपके आंसर की, वो अलग ही चीज़ होती है. तो कोई भी जो एग्जामिनर होगा अगर वो अप्रिशिएट करता है वो उसमें आंसर्स आपको नंबर अच्छे मिलेंगे. डेफिनेशन के लिए आप कोई भी बुक रेफ़र कर लीजिए, आप इंटरनेट रेफ़र कर लीजिए. इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एक डेफिनेशन याद कर लीजिए. पर एग्जाम्पल्स जो हैं, आंसर्स जो हैं, उसको बहुत पर्सनलाइज करके दीजिए. बहुत ज़्यादा छूट मिलती है मुझे लगता है ऐसे और एथिक्स में अपने आप को दिखाने की. तो मुझे लगता है वो दिखाना चाहिए बच्चे को और उसको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नहीं बनाना चाहिए. सेम विद ऐसे राइटिंग ऑल्सो. अगर कि मान लो कोई कोट आई है किसी भी तरह की कि एक कस्टमरी मोरालिटीज कैन नॉट बी ग्राउंड टू अ मॉडर्न लाइफ. तो यहाँ पे आप बहुत जो कोट बेस्ड जो ऐसे आते हैं वहाँ पे आपको नॉवेल्टी का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है. वहाँ पे आप जो उसको कहीं पे भी कहीं से कनेक्ट कर सकते हो. तो आप बहुत उसमें अलग अलग डायमेंशन में जाइए, हिस्टोरिकल डायमेंशन एक्सप्लोर करिए. आपको पर्सनली कुछ लगता है वो भी उसमें लिख सकते हैं. आपने कोई मूवी देखी है उसको लिख सकते हैं. आपने कहीं स्पीच सुना है वो भी लिख सकते हैं. सो फॉर ऐसे यू कैन bring more innovation into the writing. You can show different dimension of the same quote or same topic. So be experimental in essay to get better marks. And and also one thing that don't ignore the essay writing. Don't ignore in the preparation phase of between pre and mains, don't ignore the essay because it gives you very good hold in your overall score. So there are many people who get very less marks in essay also. So push hard in essay too. Give dedicated time to your essay writing. In 15 days you can write one essay and
Then in next 15 days prepare one more essay in different topics, in different kind of essay you can practice. And for GS1 it's a more static portion. History, geography you can prepare from the standard book, like history you can prepare from Vipin Chandra, and the same book which you have referred in the pre would do. And the society part is more dynamic, so you have to prepare from the current affairs, and you need to bring out the more dimensions of the same society based question. And for second paper it's polity and governance and international relation. यहाँ पे भी इट्स मोर ओरिएंटेड टू द करंट अफेयर्स पोर्शन. तो आप अपना, जैसे मैंने पहले बताया, 40 क्वेश्चंस का वो बना लीजिए सेकंड पेपर के लिए एज वेल एज GS थर्ड, and that will really help you in consolidated the material and bring out the very relevant content to the question. So that will really help you. तो नेहा, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी और इसमें मॉक इंटरव्यूज़ का क्या योगदान रहा? जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो होती है वो मुझे लगता है आपकी अपने बारे में प्रिपरेशन होती है, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी मोर फ्रॉम योर लाइफ, what your education background, what your hobbies, what were your achievements, and the current affairs. two most important things जो इंटरव्यू के लिए रहती है. तो जैसे कि आप एक तो मेंस की प्रिपरेशन में यू विल मोर बी इन आइसोलेशन प्रिपेयरिंग डेली, बट इन इंटरव्यू मोड में आने के लिए आई थिंक यू हैव टू बी मोर, you should work upon your communication skill. You should talk to people of different strata, try to know their opinion, try to put yours opinion. That will make you very comfortable, no matter who is your panel members, who are your panel members. You will feel comfortable in answering any kind of question. This is like this was my whole thing to coming out of isolation and putting myself in interview mode. सेकेंडली आपको करंट अफेयर्स का जो देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप मेंस में आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, वहीं पे आपको करंट अफेयर्स के लिए आपको 2-3 न्यूज़पेपर देख लेना चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस मिल जाते हैं. और थोड़ा सा जैसे आप मेंस में जहाँ पे ज़्यादा फॉर और अगेंस्ट में लिखते हो, मुझे लगता है इंटरव्यू में ओपिनियटेड होना हेल्पफुल होता है, इन द सेंस आपकी जो ओपिनियन है वो रैशनल ग्राउंड की होनी चाहिए. दैट विल रियली हेल्प यू, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. तो जहाँ पे आप मेंस में जो आंसर्स लिख रहे हो वो ज़्यादातर एनालिटिकल और मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए टू शो ऑल द डायमेंशन. और वहीं पे जो इंटरव्यू के आपका जो मोड है वो बहुत ज़्यादा अगेन नेचुरल होना चाहिए. वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर के आनी चाहिए, तो उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है. फर्स्ट थिंग द टॉक टू डिफरेंट काइंड ऑफ. सेकेंडली आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए. और थर्डली आप अपनी हॉबीज़ देखो, जो आप डेफ में लिखते हैं हॉबीज़, वो इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से हो जाती है. जैसे मेरा जो दोनों बार जो मेरा इंटरव्यू था, दैट वॉज मोर ऑन माई हॉबी पार्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक तो आप कंफर्टेबल बहुत होते हो, और आपका जो पूरा इंटरव्यू होता है ना वो प्लान्ड लाइन पे चल रहा होता है, तो वो आपके बेनिफिट में काम करता है. वहाँ पे आप फेल नहीं हो सकते हो. तो वो मुझे लगता है कि वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपके इंटरव्यू में, रादर देन गोइंग टू एनी डायरेक्शन. अगर आप उनको एक डायरेक्शन देते हो डेफ के थ्रू, वहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ मेंशन करिए, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका. तो जैसे कि इस वाले इंटरव्यू में भी मुझसे मेरी हिंदी पोइट्री राइटिंग मेरी हॉबी है, तो उन्होंने मुझसे हिंदी की पोइम ही पूछ ली थी. तो वो मैं प्रिपेयर करके गई थी कि अगर दे आस्क मी टू रिसाइट एनी पोइट्री तो मैं ये वाला पोइम अपना बोलूँगी.
तो वो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे आपकी एक तो पर्सनैलिटी, एक आपका प्री प्लान्ड जो आप सोच के गए होते हैं वो आप बोल रहे होते हैं, तो वो अलग ही मॉरल बूस्टर के तौर पे काम करता है। और जो भी बच्चे प्री और मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 घंटे तो अपने हॉबी को दे सकते हो। कुछ भी हो सकता है वो, रादर देन चैटिंग और ये सब। इसके बजाय आप थोड़ी ऐसी हॉबी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वो लॉजिकल भी हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ फीलिंग ऑफ डेफ आप इतना पैनिक नहीं रहोगे कि मैं क्या हॉबी भरूं इसमें, क्योंकि आपने उतना 1 साल तो होता है प्रिपरेशन का पूरा। तो वहाँ पे अगर आपने नई हॉबी भी डेवलप कर ली, मान लो गार्डनिंग कर लिया है, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, और आप एक्चुअली कर रहे हो, और आपकी जो एक्चुअल हॉबी होती है वो उतना आपको वो भी देती है, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है पैनल में, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी समझ में आता है, उनको भी मज़ा आता है आपके बारे में जानने में, तो वो एक पॉजिटिव काम करती है। और पर नेहा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि मतलब फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू का सिलेबस तो सबसे बड़ा है। मुझे लगता है इंटरव्यू का सिलेबस तो प्रीलिम से बड़ा है, इंटरव्यू का सिलेबस तो मेन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स तो वो पूछ ही सकते हैं, वो मेरे मेन से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरे ऑप्शनल से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और फिर जहां मैं पैदा हुआ, जो मेरा नाम है, वो मेरे नाम का क्या मतलब है। हो सकता है मैंने कहीं स्कूलिंग किसी और जगह से करी हो सकता है मैंने नौकरी किसी और जगह पे करी हो सकता है मैंने जिस सेक्टर में नौकरी करी है, मतलब एक मुझे लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वेयर आई हैव लिव्ड, मीनिंग ऑफ माई नेम, डू कैन यू थिंक अबाउट एनी पर्सनैलिटीज विद दैट नेम। ठीक है, मतलब मुझे तो लगता है ये तो ब्रह्मांड है। तो मुझे एज ए एस्पिरेंट आपसे मतलब एक डाउट है एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे, कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद और इंटरव्यू, फर्ज कर लीजिए कि आपका पहले बैच में आपका इंटरव्यू है, तो समय तो बहुत ही ज्यादा कम मिलता है इतनी और मुझे लगता है इंटरव्यू का सिलेबस सबसे बड़ा है और समय जो मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए वो सबसे कम है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से? जी, जो भी आपने क्वेश्चंस करे वो तो मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेक्टेड ही हो गए। पीपल वर आस्क्ड मोर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। So in my first interview, sir asked me, you were from engineering background, science background, you apply the physics laws in ballet dancing. So my hobby was dancing, and the another question was why dancing is always done with the music. So these kind of question you can't really prepare कि आपको क्या पूछा जा सकता है। पर वन थिंग जो लगता है कि वो आपका रिएक्शन टेस्ट करते हैं फर्स्टली, कि आप अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वहाँ पे मॉक भी एक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, जहाँ पे मान लो आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस गए, जहाँ पे लगता है कि आपको या तो आपने कुछ गलत बोल दिया, अगर गलत बोल दिया तो तुरंत सॉरी बोल लो। एंड अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन है पर वो नहीं आपको आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है। तो ये सब आप अगर पहले से तैयारी करते हो, आप मॉक्स देते हो, और एक जो मैंने चीज़ करी थी अपने मेंस के बाद, इस तरह का जो नाम से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड और इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए थे पहले से। तो उससे क्या होता है, एक तो आपसे अगर सेम क्वेश्चन पूछते हैं, आप जब प्रिपेयर्ड होते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। और अभी जैसे कि अगर आप इंटरव्यू को इस तरह से सोच लोगे ना कि ये कंट्रोलेबल है और कि किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो आई डोंट थिंक यू कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। पहले आपको एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द प्रिपरेशन टाइम बीइंग, इस तरह से अपने आप को करना पड़ेगा कि आप अपना इंटरव्यू जो है उसमें जितना नेचुरल रह सकते हो, फर्स्ट थिंग नेचुरल रहो, और सेकेंडली जो आपसे जो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं, एक्सपेक्टेड लाइन के क्वेश्चन जो आए, जो आपने डायरी में बना रखे हैं, जिसके आपने नोट्स बना रखे हैं, अपने अपने हॉबीज़ पे नोट्स बना रखे होते हैं, तो वो जो पूछेंगे तो वो तो आप हैंडल कर ही लोगे। पर आप मान लो जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो बहुत पहले ही मैंने छोड़ दिया, और फिर एकदम जो उससे मेरा कोई क्वेश्चन हो गया, आई थिंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्वेश्चन था, तो वो मुझे नहीं आया था उस टाइम,
बट मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा मैटर किया उस टाइम, क्योंकि दे वांटेड टू नो कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर आप रहे हो, रिएक्ट कैसे करते हो और उस सिचुएशन आपका में। ये जो कॉन्फिडेंस है वो, और आपको वो खेलना नहीं है, खेलना एज इन मतलब आपको नहीं आ रहा है तब भी आप गैस मार रहे हो, या फिर आप नर्वस हो गए हो और आपको लग रहा है कि आप कुछ भी बोल दोगे वो मान लेंगे। तो दे आर रियली एक्सपीरियंस, दे आर रियली दे हैव वर्कड इन लॉट ऑफ, बहुत सारे एरिया में काम कर रखा है। तो उनको डोंट थिंक ऑफ कंट्रोलिंग दैम, थिंक ऑफ कंट्रोलिंग योर सेल्फ, योर आंसर्स, टेक टाइम, टेक पॉज बिफोर आंसरिंग। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, मुझसे पूछा था हैप्पी हार्मोन आप बताइए कि व्हाट इज़ हैप्पी, मैंने दे आस्क मी कि वाई यू डांस or why dancing is your hobby. I just naturally said, sir ma'am, dancing makes me happy. So they asked me what is the name of happy hormone. I didn't know that, that time I didn't know. तो वो मैंने कहा मैम आई डोंट नो। तो उसमें पैनिक कौन सा होता है, सेरोटोनिन, डोपामिन, कौन सा so होता much है? talk about all this, so I should have known this, but at that moment अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उस आंसर को वहीं छोड़ दीजिए, आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है उस पर फोकस करिए। उससे क्या होगा, तो वो आप अगर IAS बनने के लिए ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली द प्रिपरेशन इज नॉट द हार्डेस्ट पार्ट विल बिगिन when you actually work on the ground, when आपके जो एक्शंस हैं वो एक्चुअल लोगों पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू में तो अगर आपका मान लो कुछ बोल भी नहीं रहे हो तो आपका खुद का सिलेक्शन नहीं होगा, यू आर द ओनली पर्सन हु विल बी इम्पैक्टेड। बट वो जो ग्राउंड सिचुएशन है दैट इज मच मोर डिफिकल्ट, दैट इज रियल, योर वन साइन विल इम्पैक्ट सो मेनी पीपल। तो वो जो इतनी पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको उन सिचुएशंस में डाला जाता है, तो वहाँ पे आपको अपनी मैच्योरिटी दिखानी है, वहाँ पे आपको दिखाना है कि ओके यू कैन हैंडल दोज डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उस चीज़ के लिए वो इंटरव्यू मुझे लगता है मेन उनका फोकस जो लगता है, जो मुझे अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है जो मुझे लगा, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं इट डज़ नॉट मैटर मच, पर अगर आप बेसिक अपना तैयार कर लीजिए, प्रिपरेशन मत छोड़ दीजिए कि मेंस के बाद इंटरव्यू की तो कोई प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती, इट इज़ सो वास्ट। नो यू कांट, एक तो एक्सक्यूज काम ही नहीं कर सकता है। आपको अपने नाम पे क्वेश्चन बनाने हैं, अपनी सिटी पे क्वेश्चन बनाने हैं, स्टेट पे क्वेश्चन बनाने हैं, हॉबीज पे क्वेश्चन बनाने हैं, और आपकी अपनी जो आपकी इंजीनियरिंग की जो सब्जेक्ट थी, जो भी आपका ग्रेड सब्जेक्ट था, सब पढ़ना है। ये एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। पर अगर इन केस आपका जो और जिनको नफरत हो अपनी इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स ना रखे हो, वो क्या करें? और दूसरा जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कहते हैं यार हमारी हॉबी नहीं है कुछ, तो मतलब क्या वो फिर मतलब क्या लिखें उसमें, कोई झूठी हॉबी लिख दें या तो कैसे करें? इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट से आपको नफरत हो सकती है, पर आपको सिविल सर्विसेज से तो प्यार है। इट्स नॉट अबाउट इंजीनियरिंग एनी मोर, इट्स अबाउट सिविल सर्विसेज। यहाँ पे आपका सिविल सर्विसेज की सिलेक्शन की बात हो रही है और उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ सिविल सर्विसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप नफरत और प्यार की उसमें नहीं जा सकते हो। आपको अगर सिविल सर्विसेज के लिए करना है, आप कूदे थे जंग के मैदान में ये सोच के कि कुछ भी कर जाओगे, तो फिर तो आपको पढ़ना भी है, वो भी पढ़ना है। और आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, जो हॉबीज़ का, मुझे जो लगता है, मुझे जो लगता है लोग रादर देन उनकी हॉबी तो कुछ होती है पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब जैसे बर्ड वॉचिंग भी एक हॉबी है, बहुत ज़्यादा आपकी अलग हॉबीज हो सकती है। तो लोगों को लगता है सिंगिंग, डांसिंग और पोइट्री और मेडिटेशन, योगा, स्पोर्ट्स, यही हॉबीज हैं। आपकी हॉबीज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकती है। तो आपको जो टाइम है, मान लो आपको एक मेरा जो फ्रेंड था उसकी डिफेंस से उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने लिखा था कि डिफेंस से रिलेटेड पढ़ना उसको, रीडिंग रिगार्डिंग डिफेंस नई डिफेंस टेक्नोलॉजी और एटसेट्रा। तो उसका आई थिंक 200 कुछ प्लस मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट इतना डिफेंस में इतना ज़्यादा था, तो उसने पूरा अपनी तरफ घुमा लिया इंटरव्यू, पूरा डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ के गया था
और उसका वन डायमेंशनल इंटरव्यू चला, बढ़िया हो गया। तो इट्स अबाउट, तो आप ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर, मान लो किसी को आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप लिखो कि मुझे आई एम वेरी वेरी मच, आई हैव वेरी keen interest in knowing the art and culture in traditions of India. That will be very good hobby. So identifying your interest is very important. तो उसके लिए एक होता है ना, जैसे हम उसमें बात करते हैं एथिक्स में, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ और वो सब। तो वहाँ पे आपने अगर अपना सेल्फ एनालिसिस करा होता है तो आपको पता चलेगी कि आपकी कुछ तो हॉबी होगी। अगर नहीं है तो अपने घर वालों से पूछो या किसी ऐसे इंसान से पूछो जो आपको जानता हो। आई कांट, मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपकी हॉबी नहीं हो सकती। आपकी हो सकता है कि आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, आपको पढ़ना ही अच्छा लगता हो, पर अगर आप रीडिंग हॉबी लिख रहे हो ना तो राइट द स्पेसिफिक हॉबी। वो मैं एक थोड़ा सजेशन देना चाहूँगी कि आप स्पेसिफिक जितना लिखोगे उतना ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है वो बाउंड्री में चले, तो वो आप कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हो। तो फिर राइट स्पेसिफिक। मेरे पास एक और आइडिया एक्चुअली नेहा। तो क्या है कि मैंने भी इंटरव्यू फेस किया था, तो मैंने एक ऐसी हॉबी लिखी ताकि उससे क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। तो मैंने उसमें लिखा, और एक्चुअली मुझे बात याद आ रही है क्योंकि आपने कहा कि स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो मेरा था सिंगिंग और म्यूजिक। तो मुझे लगा कि अगर मैं सिंगिंग लिख दूंगा तो ये लोग मुझसे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पूछने लग जाएंगे, ठीक है, मुझे और जिसके बारे में ना सर ना पैर ना कोई इंटरेस्ट, हॉबी तो दूर की बात। तो मैंने लिखा स्पेसिफिक सिंगिंग हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स। और मतलब हुआ ये कि उसमें उन्होंने बाई चांस किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो मैं तो इस तरीके से बहुत लकी रहा। बट सर वो तो फिर काम की भी नहीं रही वो हॉबी, क्योंकि वो अगर आपके इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन नहीं हुए फिर तो वो मजा नहीं आया। पर ठीक है, अगर आपका मान लो वो ब्लैंक नहीं, पर वैसे मैंने उसकी तैयारी खूब करी थी। मैंने 3 अच्छा, किताबें पढ़ी थी उसके ऊपर कि कैसे म्यूजिक इवॉल्व किया है बॉलीवुड का। हाँ, वो भी एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है। एनीवेज, हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन सर हाँ, आप सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि आप अगर वो बॉलीवुड के बारे में भी पूछ सकते थे कि बॉलीवुड इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह से काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस तो काफ़ी चीज़ें हो सकती थी जी। तो डेफिनेटली आप अपना इंटरव्यू अगर आपको अपना मतलब अपने इंटरेस्ट बेसिस पे और अपने तरह से कंट्रोल करना है, तो मुझे लगता है डेफ को आप उस तरह से डिज़ाइन करिए कि आपके इंटरेस्ट बेसिस पे क्वेश्चंस हों, आपका जो पॉजिटिव आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो निकल के आए इंटरव्यू में। तो उसके लिए आपको जो पूरी लाइफ अपना एक्सप्लोर करना पड़ेगा। स्कूल में आपको क्या पसंद था, कॉलेज में क्या था, तो डेफ भरते हैं तो वो मुझे लगता है थोड़ा क्रूशियल टाइम होता है, थोड़ा हम जल्दी में भर देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना चाहिए जी। तो वेल बहुत अच्छा लगा नेहा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि हमने अपनी इस टॉक में सारे पहलुओं के ऊपर हमने जो है बात करी है और काफ़ी डिटेल में हमारी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी भाषी हों चाहे वो टाउन से हों, आप एक उनके लिए प्रेरणा है और आप सारी लेडीज़ के लिए प्रेरणा है। तो जितनी भी स्ट्रगलिंग लड़कियां हैं जो कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाह रही हैं, मुझे लगता है आप एक सिंबल ऑफ होप हैं, जिस तरीके से आपने मेहनत करी और आपने गिव अप नहीं किया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नेहा, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, एंड विजन इज डूइंग ग्रेट जॉब इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी like for mains or for interview, you are doing great job. Kudos to Vision team. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Thank you, sir. Neha. Thank you so God much. bless you. Take care.